بلوچستان کے ضلع قلات میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، ایف سی کے 18 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن کے دوران منگوچر اور ہرنائی میں 23 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ افواج پاکستان کے ترجمان نے بتایا کہ دہشت گردوں نے قلات کے علاقے منگوچر میں سڑک بلاک کرنے کی کوشش کی، پرامن شہریوں کے معمولات زندگی متاثر کرنے کی کوشش کی۔ کارروائی میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ ایف سی بلوچستان کے 18 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ واقعے کے خلاف بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ ہرنائی میں کلیئرنس آپریشن کے دوران 11 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ بلوچستان میں امن سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، 18 اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی اہلکاروں کی بہادری کو سراہا۔ صدر آصف زرداری نے کہا ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردوں کو بلوچستان کا امن خراب کرنے نہیں دیں گے۔ حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام جاری رکھے گی۔ مرکز میں پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں وزیرستان کے لوگوں کو بہت نقصان ہوا۔ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ بدقسمتی سے حکومتی سطح پر ان کی قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا تقریب سے خطاب، نظام اسلام میں دیرپا امن کا قیام صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کے پی حکومت کو این ایف سی میں ضبط اضلاع کا شیئر نہیں مل رہا۔ ابھی تک تو وہ فون کال نہیں آئی۔ پاکستانی گورنمنٹ کا یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے۔ کچھ چیزیں صرف سوشل میڈیا کی ڈیمانڈ پہ چلتی ہیں، کچھ چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں، تو آپ کو حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے کی طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں۔ میرا تو پہلے بھی اسی طرح جب 26 نومبر تھا انہوں نے اسی طرح ڈیٹیں پک کی تھی، نہیں کریں گے تو پھر۔ امریکہ سے اب تک کوئی کال نہیں آئی، جب آئے گی تو دیکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا صحافی کو جواب، کہا 8 فروری کے احتجاج پر پی ٹی آئی سے پہلے کی طرح درخواست کریں گے کہ ایسا نہ کرے۔ اگر وہ نہ مانی تو وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں میں حقائق نہیں ہوتے۔ امریکہ سے پاکستانی حکومت کا اچھا تعلق ہے۔ حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور کچھ آنا باقی ہیں۔ سفارتکار بتاتے ہیں پاکستان میں آئین و قانون نہیں، یہ لوگ ایک کاروباری کو اٹھا لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑا بزنس مین ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا 2 سال سے سن رہے ہیں $50 ارب آ رہے ہیں، کیا اونٹوں پر لاد کر لا رہے ہیں؟ کیا قافلہ کہیں بھٹک گیا یا بحری جہاز کہیں پھنس گیا؟ حالات ٹھیک نہیں، ہوش کے ناخن لیں، آپ عوام سے لڑائی نہیں کر سکتے، ڈائیلاگ کا راستہ کھولیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا مذاکراتی کمیٹیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ، ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کہتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹیاں برقرار ہیں، ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئی۔ اسپیکر ایاز صادق مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی خواہش ہے حکومت اپوزیشن مذاکرات سے مسائل کا حل نکالے۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید 2 گواہوں کے بیانات قلم بند۔ گواہ عمران نے 15 تصاویر بھی عدالت میں پیش کی۔ پروسیکیوشن نے شواہد پر مبنی 13 USB جمع کرائیں۔ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ 31 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 8 فروری تک توسیع۔ عدالت کی 8 فروری سے قبل بشرا بی بی کو مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت۔ عدالت کا 8 فروری کو بشرا بی بی کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ مراکش کشتی حادثہ، انسانی اسمگلنگ گینگ کا اہم سہولت کار عبدالغفار اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار۔
अहम शवाहिद बरामद, मुकदमा दर्ज। FIA का कहना है कि मुलजिम अब्दुल गफ्फार ने दर्जनों अफराद को बैरून मुल्क भिजवाने में सहूलतकारी की। 2023 से मोरितानिया में रह रहा था। मुलजिम की निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले मजीद 8 अफराद वतन वापस पहुंच गए। विभाग से कराची के लिए पैसे लाएं और मेरे साथ बैठें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की साबिक मेयर और MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को पेशकश। कहा MQM वाले सोचें, मसाइल बातों से हल होंगे, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कराची की खिदमत होगी। कराची को 15 नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए, ये इसका हक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम तो शहर की खिदमत कर ही रहे हैं। मेयर कराची आए, हमारा साथ दें। सिंध में 50 साल से कोटा सिस्टम राइज है। जो 40% मुयसर था उसका 90% भी चुरा लिया गया। ये चाहते हैं कराची का एक बच्चा भी ना पढ़े। मुर्तज़ा वहाब सिंध हुकूमती इस इक़दाम के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? कराची के सरकारी कॉलेज की तालिबात की फीस हड़प करने वाले सुप्रिंटेंडेंट ने मुबैना तौर पर जहर पी लिया। पुलिस का कहना है कि 9 लाख से ज्यादा रकम लेकर फरार होने वाले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन नाजिमाबाद के सुप्रिंटेंडेंट ने जहर पी लिया। मुलजिम को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसकी सेहतयाब होने पर जांच पड़ताल की जाएगी। तालिबात की फीस प्रिंसिपल ने जमा करा दी, जिसके बाद तालिबात को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत चौथी बार हमास और इसराइल में कैदियों का तबादला। गजा के साहिल के करीब हजारों अफराद जमा। हमास ने 3 यरगमानियों को हिलाल अहमर के हवाले कर दिया। बदले में इसराइल ने 183 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। 9 माह बाद रफा क्रॉसिंग खोल दी गई। WHO के मुताबिक रफा क्रॉसिंग से 50 फलस्तीनी मरीजों को मिस्र मुंतकिल किया जा रहा है। दस फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ समात फुल कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। 26वीं तरमीम के अदिया पर असरात के उन्वान से वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख किया जाए। जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता, नई तैनातियां न की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 8 वकला के नामों की मंजूरी दी गई। जिनके नामों की मंजूरी दी गई उनमें फरा जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फयाज, सलाहुद्दीन, सादिक अली के नाम शामिल हैं। तारिक आफरीदी, साबित अली, औरंगजेब खान के नामों की भी मंजूरी दी गई। FBR फेसलेस सिस्टम नाकाम बनाने का मंसूबा बेनकाब। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इम्पोर्टर्स और एजेंटों से राब्ता करने वाले FBR के 3 मुलाजमीन गिरफ्तार। FBR हुकाम का कहना है कि FBR फेसलेस सिस्टम में करप्शन करने वाले अफसरान और एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। गिरफ्तार अप्रेजिंग ऑफिसर से राब्ता रखने वाले 45 कस्टम्स एजेंट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकाती टीम काम कर रही है। फेसलेस निज़ाम के बाद अप्रेजर और अफसरान का एजेंटों और इम्पोर्टर से राब्ता खत्म हो गया था। सिस्टम नाकाम बनाने के लिए अप्रेजर ने जानबूझकर कंसाइनमेंट क्लियरेंस में ताखीर की। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इम्पोर्टर्स और एजेंटों से राब्ता किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। डीजल 7 रुपये और पेट्रोल की कीमत 1 रुपये फी लीटर बढ़ गई। डीजल 267 रुपये 95 पैसे हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर हुई। अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। आटा चीनी की कीमतें बढ़ाकर वज़ीर आज़म फरमाते हैं, महंगाई खत्म हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि कोई वज़ीर आज़म से उनका फार्मूला पूछे। ये लोग कौम पर महंगाई मसल्लत करके अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में लगे हैं। सन में एहतजाज करने वाले असातिज़ा के साथ हैं। ब्यूरोक्रेट का कोई हक नहीं कि उन्हें मसल्लत कर दिया जाए।
रवां साल मुल्क में पहली बार माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। ज़राए का कहना है चारों सूबों की सीवरेज लाइनों में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 की मौजूदगी साबित हुई। सिंध के 15, केपी के 5, बलूचिस्तान और पंजाब के 3 अजला के माहौलियाती नमूने पोलियो पॉजिटिव निकले। रवां बरस मुल्क में पोलियो वायरस का 1 केस रिपोर्ट हो चुका है। कराची साइट एरिया में वाटर टैंकर की टक्कर से फैक्ट्री मुलाजिम जाम बहक ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। हादसा ड्राइवर की गफलत से पेश आया। करंगी सेक्टर 50 में मदरसे के टैंक में डूबकर 16 साल तालिब इल्म और उस्ताद जाम बहक हो गया। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में पानी के गैर कानूनी प्लांट पर पुलिस का छापा। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमान नदी से बजरिया पंप पानी निकालकर फैक्ट्रियों और घरों में सप्लाई कर रहे थे। सिंध की जामियात से मुतालिक तरमीमी बिल के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज जारी। जामियात में तदरीसी अमल के बाइकआउट का 13वां रोज। अंजुमन असातिज़ा जामिया और फिपवासा का कहना है कि तरमीमी बिल कबूल नहीं किया जाएगा, फौरी वापस लिया जाए। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। दिल के मरीजों की सर्जरी 5वें रोज भी बंद। YDA का कहना है सीनियर डॉक्टर के तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने पर डॉक्टर एजाज को मुअत्तल किया गया। डॉक्टर फरकत आलमगीर को चेयरमैन के ओहदे से हटाया जाए। PIC का नया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील दिया जाए। MS ने डॉक्टर्स की हड़ताल को सपोर्ट करने वाले 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट के लिए कुरंदाजी की गई। पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। पहले फेज में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। काश्तकार को रोजाना 10,000 से जायद और माहाना 3.25 लाख से ज्यादा की बचत होगी। मरियम नवाज का कहना है कि ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। गलियात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सियाहती मकामात नतिया गली, ठंडियानी, छांगला गली, अयूबिया बर्फ से ढक गए। बर्फबारी से मरी रोड समेत राब्ता सड़कों पर शदीद फिसलन। सयाहों को इंतजामिया की जानिब से मुहतात रहने की हिदायत। शिमाली बलूचिस्तान यकबस्ता हवाओं की लपेट में। कोयटा, ज़ियारत, चमन और जोब में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलात में दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। कोयटा की ठंडी हवाओं ने फिर कराची का रुख कर लिया। कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वेबसाइट्स हैकिंग टूल्स बेचने और माली फ्रॉड में मुलव्वस पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। अमरीकी और डच हुकाम ने पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक कार्रवाई डच नेशनल पुलिस के ताउन से की गई। तहकीकात के मुताबिक 2020 से सरगर्म नेटवर्क अमरीकी शहरियों को $30 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचा चुका। टूल्स के जरिए कंपनियों को जाली अदायगियों के लिए धोखा दिया जाता था। Eventually, we're going to put tariffs on chips. We're going to put tariffs on oil and gas. That'll happen fairly soon. I think around the 18th of February. Canada treated us very unfairly. So it's 25% when the candidates said. अमरीकी सदर का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ के निफाज का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। टैरिफ के निफाज पर कनाडा, मेक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। टैरिफ के निफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। टैरिफ के निफाज से मार्केट के रद्दमल पर तशवीश नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का रद्दमल, कहा अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो फौरी और ज़बरदस्त जवाब देंगे। अमेरिका ने 7,300 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। पाकिस्तानी भी वाशिंगटन में तैयारा और हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात। दरियाए पोटोमैक से फौजी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मुकर्ररा हद से 100 फुट ऊपर परवाज कर रहा था। अमरीकी एविएशन ने रेगन एयरपोर्ट के इतराफ हेलीकॉप्टर परवाजों पर पाबंदी लगा दी। दरिया से निकाली गई लाशों की तादाद 41 हो गई। हादसे में 67 लोग रुकमा अजल बने थे।
अमेरिका में 3 रोज के दौरान दूसरा तैयारा गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। एम्बुलेंस तैयारा मरीज की मुंतकली के दौरान फिलाडेल्फिया में हादसे का शिकार हुआ। तैयारा उड़ान भरते ही शॉपिंग मॉल के करीब गिरा, जिसके बाद करीबी घरों में आग लग गई। मुतादिद गाड़ियों और मकानात को भी नुकसान पहुंचा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कजाफी स्टेडियम का दौरा, मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। बॉक्सेस के सामने लगाई रेलिंग के मेयार को चेक किया। मोहसिन नकवी के फिनिशिंग वर्क को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, कजाफी स्टेडियम तकमील के करीब है, फिनिशिंग वर्क में मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। खुशी की बात है कि इस बार जो चैंपियंस ट्रॉफी वो पाकिस्तान में हो रही है। खुशी ज़्यादा होती है अगर कुछ मैचेस इकबाल स्टेडियम में भी होते हैं। शायद कि क्रिकेट इधर भी उतने ही पुरजोश हैं जितने पूरे मुल्क में हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में रौनकें, मुल्क में ट्रॉफी टूर के दूसरे मरहले का आगाज। चमचमाती ट्रॉफी का शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार से सफर शुरू। ट्रॉफी बहावलपुर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और हैदराबाद समेत दीगर शहरों का भी दौरा करेगी। पाकिस्तानी नियात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम का वर्ल्ड चैंपियन सरगई लेपिनेट से मुकाबला आज होगा। अजीम आदम कहते हैं कि 4 साल की उम्र से बॉक्सिंग कर रहा हूं, मुकाबले के लिए सख्त ट्रेनिंग की है। मद्दाह आज रात मैच जरूर देखें। आदम और सरगई का मुकाबला स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। लंदन के वेम्बले अरेना में मुकाबला देखने हजारों लोग पहुंचेंगे।